connected with each other and they are communicate with each other. That is called computer network. Why need of computers network? The first point is sharing sources, reduced costs, reduced time, scalability, reliability, and security. Now we discuss type of computers network. Networks are classified depending on the geographical area covered by the network. Basically, there are three main types of computer networks. First is LAN, local area network. Second one is MAN, metropolitan area network, and third one is a wide area network, WAN. There are three types: LAN, WAN, and MAN. Local area network, metropolitan area network, and wide area network. And fourth one is campus area network, CAN. It is not most important in the types of computer network. The main are LAN, WAN, and MAN. First of all, local area network covers a small area, connects computer and workstation covering a local area like office or home. In this topic, local area network is very small network in which our computers are connected in a small distance or limited distance. And just like as there are three computers, one printer and one server are connected with the network device. What is the advantages of LAN? Improves productivity due to fast network, provides easy maintenance, new systems can be installed and configured easily. Disadvantages of LAN: limited number of systems can be connected because of a small area network. In this way, limited computers are attached, cannot cover large area. Network performance decrease as number of user exceeds. When we increase the number of computers in the network, the performance of LAN local area networks will be reduced. Second one is metropolitan area network, interconnects networks within a city, supports data and voice transmission. In this picture you can see हमारे पास एक LAN है, फिर दूसरा LAN है और LAN 3 है. मतलब स्मॉल एरिया है, डिफरेंट जगह पे हमारे पास स्मॉल एरिया नेटवर्क लगे हुए हैं और वो स्मॉल को आपस में अटैच किया जाए तो वो विद इन अ सिटी हो सकता है. जो हमने LAN पढ़ा है, LAN में हमने ये डिस्कस किया है कि जो स्मॉल एरिया में है वो लाइक एज अ ऑफिस में हो सकता है, होम्स में हो सकता है, बिल्डिंग्स में हो सकता है, एक कॉलेज की लैब में हो सकते हैं, तो वो आप लोगों के LAN कहलाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं. और जो आप लोगों की मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हैं, जब आप लोग एक शहर की बात करते हैं, एक विद इन सिटी के नेटवर्क की बात करते हैं, और वो आप लोगों का मैन बन जाता है. और ये मैन डिफरेंट लैंस को मिलाने से बनता है. जैसे कि आप लोगों का रेडियो स्टेशन है, तो उसकी फ्रिक्वेंसीज विद इन सिटी एक मखसूस शहर के लिए होती है, तो वो उसको आप लोग मैन बोला जाएगा. Next one is wide area network, covers a wide geographical area which includes multiple computers or LANs. For example, internet. पहले हमने पढ़ा था LAN जो कि स्मॉल एरिया में होते हैं, वो ऑफिस बिल्डिंग में हो सकता है. फिर हमने पढ़ा मैन मेट्रोपोलिटन जिसमें और डिफरेंट छोटे छोटे LAN मिलकर एक शहर में बनते हैं और वो एक शहर में जो नेटवर्क होता है वो मैन होता है. अब हम जब वैन की बात कर रहे हैं तो वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है. जब बहुत सारे मैन और लैन आपस में मिलते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क बना देते हैं. वाइड एरिया नेटवर्क में आप लोगों के पास इंटरनेट है. इंटरनेट आपका एक शहर में भी है, एक बिल्डिंग में भी है, दूसरे सिटीज में भी है, एक कंट्री में है, दूसरे कंट्री में भी है.
तो ये आप लोगों का जो है ना वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, जिसमें पहले छोटे ऑफिस से, फिर सिटी से, फिर आपका कंट्री से, फिर दूसरे कंट्री से आप लोग कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये आप लोगों का क्या आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। इसमें आ जाता है कंपैरिजन ऑफ नेटवर्क्स। लैन, कैन, मैन एंड वैन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैन हमने पढ़ा था कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन इन ऑफिस और होम, and can connects two or more LANs within a campus. MAN is a interconnects networks in a town or a city. WAN connects geographical separated LANs. जो लैन है हमारे पास, वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 1 किलोमीटर के लिए होता है। कैन का 5 to 10 किलोमीटर्स के लिए होता है। और ऐसे ही मैन के लिए 2 to 100 किलोमीटर्स के लिए, और वैन जो है मोर देन 100 किलोमीटर्स। आप लोगों को पता है कि जो इंटरनेट है वो हर जगह पे चलता है, चाहे वो आपके एक शहर में है, किसी भी कंट्री में है। तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो उसकी जो ट्रांसमिशन होगी, जो उसकी कम्युनिकेशन होगी, जो उसमें शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आगे जाते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन जो सबसे अच्छी है वो वैन की भी है, और इसी लिहाज से अगर स्मॉल एरिया की बात करें तो वो लैन की है। आगे सबसे जो लो कॉस्ट होता है वो लैन होता है, हाई कॉस्ट कैन होता है। मैन जो होता है वो हाई कॉस्ट भी हो सकता है और लो कॉस्ट भी हो सकता है, वो आप पे डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। और वैन जो होता है हाई कॉस्ट है। और ये आप लोगों को पता है कि इंटरनेट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जाना, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, तो ये एक बहुत महंगा प्रोसीजर होता है। अब नेटवर्क हमने पढ़ तो लिया कि नेटवर्क क्या था, कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं और आपस में वो बातचीत कर रहे हैं और वो आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो वो नेटवर्क होता है। फिर हमने कहा था कि नेटवर्क की जो थी वो यूजेस क्या है, वो स्केलेबिलिटी होती है, वो सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो शेयरबिलिटी के लिए काम कर रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों का जो काम है वो आसान बना रहा होता है। फिर हमने पढ़ा था तो उसकी टाइप्स कौन सी हैं, लैन वैन मैन पढ़ा। फिर उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा कि लैन किस लिए होता है, छोटे एरिया के लिए होता है। फिर हमने मेट्रोप्लेन एरिया नेटवर्क के लिए पढ़ा, फिर वाइड एरिया के लिए पढ़ा, फिर उनकी ट्रांसमिशन डिस्टेंस पढ़ा, फिर उनकी स्पीड पढ़ी, फिर उनकी कॉस्ट के बारे में पढ़ा। अब नेटवर्क एप्लीकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे ये नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर सबसे पहले जो है बैंकिंग सेक्टर में ये इस्तेमाल हो रहा है। फिर आ जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिसमें, और फिर आप लोगों का ये आ रहा है WWW और ISP। WWW स्टैंड फॉर होता है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, और ISP इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि आप लोगों को इंटरनेट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये थी नेटवर्क एप्लीकेशंस। अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।